ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مظفر علی سحر کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین وائٹل گروپ حاجی محمد یاسین کی صحت یابی کے لیے وائٹل دسترخوان پر دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ دعائیہ تقریب میں شیخ العرب الاعظم الشاہ حضرت مولا جلیل احمد اخون نے خصوصی شرکت کی اور حاجی محمد یاسین کی صحت یابی کے لیے خصوصی دعا کی۔ تقریب میں سربراہ وائٹل گروپ حاجی محمد سعید، مینیجنگ ڈائریکٹر وائٹل گروپ آف کمپنیز میاں فاروق ثنا نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں شریک شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا جلیل احمد اخون نے کہا کہ آج امت مسلمہ انتہائی پریشانیوں اور تکلیفوں سے دوچار ہے، وہ چاہے مہنگائی کی صورت میں ہو یا بے رحم حکمرانوں کی صورت میں، بہت سے علاقوں میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط سالی کے عذاب کی صورت میں ہو یا یہود و نصارہ کے ہم پر تسلط کی صورت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ توبہ اور استغفار کی برکت سے اس طرح کی سب پریشانیوں اور تکالیف سے ہماری خلاصی کروا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حاجی محمد سعید اور حاجی محمد یاسین جیسے پرہیزگار، با کردار اور مخیر شخصیات معاشرے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت ایمان والی عمر خضر عطا فرمائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ کے حضور توبہ استغفار کی قبولیت خطا کے بعد نادم ہو کر مالک کی طرف رجوع کرنے والے خوش نصیب ہیں۔ دعائیہ تقریب میں علماء اکرام اور وائٹل گروپ کے کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں گے جام پور سے، آپ کو بتاتے چلے راؤ شفیق احمد کی خصوصی رپورٹ کے مطابق امیدوار ایم این اے حلقہ این 193 سردار اختر حسن خان گورچانی کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری اور مختلف سرکردہ سیاسی شخصیات اپنی برادری سمیت پیپلز پارٹی گورچانی گروپ میں شامل۔ اسی طرح موزہ بستی چنڈ یونین کونسل جھوک مہار حاجی محمد عظیم بخش خان ملوخانی بلوچ اپنی برادری سمیت محترم سردار اختر حسین گورچانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ان کے بیٹے رحمت اللہ پردیسی نے محترم سردار اختر حسن خان گورچانی کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہوئے مکمل سپورٹ کا اعلان کیا۔ لیا سے آپ کو بتاتے چلے ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر لیا اسد الرحمان کی فرائض کی سر انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس افسران کے ساتھ میٹنگ۔ ڈی پی او نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بہادری کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسران کے جذبہ کو سراہتے ہوئے انہیں شاباش دی اور آئندہ بھی اس جذبہ کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات کرنے والوں میں انسپکٹر محمد اشرف اور کانسٹیبل محمد حسنین شامل ہیں۔ انسپکٹر محمد اشرف تھانہ سٹی تعیناتی کے دوران ملزم کی فائرنگ کے لیے ریڈ پر گئے تو ملزم چھریوں کے وار سے انسپکٹر اشرف کا زخمی کر دیا، جبکہ کانسٹیبل محمد حسنین محافظ گشت کے دوران مشکوک شخص کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا۔ تھانہ شاہ کوٹ اے ایس آئی رانا عابد کی تھانہ شاہ کوٹ میں تعینات ہوتے ہی دبنگ کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ عمران فضل کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او صاحبال فیصل شہزاد کے زیر قیادت، ڈی ایس پی سرکل ساجد محمود گوندل کے زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ شاہ کوٹ رانا کاشف کی ہدایت پر اے ایس آئی رانا عابد نے گشت کے دوران الطاف عرف فیاض ولد عبد الرحمان قوم بلوچ سکنہ 19/14 ایل سے 1500 گرام چرس برآمد کر لی۔ شیزان علی ولد سردار علی قوم رحمانی سکنہ 79/12 ایل سے 25 لیٹر شراب برآمد۔ ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے پابند اصلاح حاصل کر دیا۔ اہل علاقہ نے ایس ایچ او تھانہ شاہ کوٹ رانا کاشف اور اے ایس آئی رانا عابد کی کارروائیوں کو خوب سراہا۔ نارووال سے آپ کو بتاتے چلے وفاقی وزیر احسن اقبال کا نارووال میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ ادارے فیصلہ کریں، مسلم لیگ نون الیکشن کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ پی ٹی آئی کی قیادت کو عوام کے سامنے مہنگائی اور ملک کی تباہی کا جواب دینا پڑے گا۔ مسلم لیگ نون 5 سال کی کارکردگی پر عوام کے سامنے جائے گی۔ احسن اقبال نے مزید کہا کہ ہم الیکشن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا ہم عوام کے پاس جائیں گے اور اب عوام کارکردگی پر ووٹ دیں۔ الیکشن کا فیصلہ اداروں نے ملک کی سیکیورٹی اور آئینی معاملات پر کرنا ہے۔ اس وقت ملک میں 6ٹھی مردم شماری ہو رہی ہے۔ آدھے الیکشن نئی مردم شماری اور آدھے پرانی مردم شماری پہ آئینی مسئلہ ہے۔ کی مرمت کے لیے مستری اس گاڑی پہ پھولوں کے ساتھ مالش نہیں کرتا، اس پہ پالش نہیں پھیرتا، اس کے ڈینٹ نکالنے کے لیے ہتھوڑوں سے ضرب لگا کے اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ لیکن جب وہ گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس پہ چمک بھی آ جاتی ہے، پالش بھی آ جاتی ہے اور وہ گاڑی فر دوڑنے بھی لگ جاتی ہے۔ تو اسی طرح آج پاکستان بھی اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کا علاج کرنا ہے تو پھر ہمیں کڑوی گولیاں کھانی پڑیں گی، لیکن اگر ہم نے صحیح علاج کر لیا تو 2 سے 3 سال کے اندر
یہ ملک دوبارہ اسی طرح دوڑے گا انشاءاللہ تعالی جیسے ہم نے 2017-18 میں اس کو چھوڑا تھا. میرے بھائیوں، آج نواب شاہ سے ہمارے بیورو چیف شاہ بخش چانڈیو کی رپورٹ کے مطابق نواب شاہ کے معزز شہری اپنی ہی جائیداد پر قبضے کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے خلاف جام صاحب میں ڈاہری برادری کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. نواب شاہ ڈولفن بیکری کے مالکان منصور ڈاہری اور مقبول ڈاہری نے نجی ٹی وی کے مالک عبدالکریم راجپر کی جانب سے صحافت کی آڑ میں جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے خلاف نذیر سندھی ڈاہری، عبدالسمیع ڈاہری اور دیگر کی قیادت میں بس اسٹاپ نواب شاہ سے ریلی نکالی. ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی شاہ پور چاکر موڑ پر پہنچی، جہاں قومی عوامی تحریک کے رہنما ابراہیم بگٹی، جسکم کے رہنما محمد شریف، معشوق ڈاہری فنکشنل لیگ کے رہنما بچل ناریجو اور دیگر نے ریلی میں شریک سینکڑوں افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام نواب شاہ کے واسیوں کو معلوم ہے کہ ڈولفن بیکری کے مالک مرحوم ڈاکٹر محمد عمر نواب شاہ کے سیاستدان ہیں. ڈاہری کی نجی جائیداد اجیت کمار نے کرائے پر لی اور ڈولفن بیکری کھولی. اجیت کمار کی شراکت داری نجی ٹی وی کے مالک ڈاکٹر کریم راجپر نے کی. پلاٹ کی ملکیت کا تنازع نواب شاہ کی عدالت میں دائر کیا گیا، جس پر سول سینئر کورٹ نے کرایہ دار کو حکم دیا کہ وہ 1 ماہ کے اندر زمین مالک منصور ڈاہری کو خالی کر دیں. 4 ماہ گزرنے کے باوجود نجی ٹی وی کی صحافت کی آڑ میں احاطے پر قبضہ کرنے کے لیے نواب شاہ پولیس پر دباؤ ڈال کر احاطے کے مالک کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کروا لیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ نواب شاہ کے معزز شہریوں پر اپنی ہی جگہ پر قبضہ کرنے پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، جس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ شریف شہریوں سے جھوٹے مقدمات ختم کیے جائیں، بصورت دیگر قاضی احمد دولت پور نیشنل ہائی وے پر دھرنا دے دیں گے. شیخوپورہ سے آپ کو بتاتے چلے سکندرآباد کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے پولیس اہلکار زخمی ہو گیا. شیخوپورہ پولیس اہلکار کو DHQ اسپتال منتقل کر دیا گیا. ٹھٹھا سے آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹھا میں سیلاب اور برسات متاثرین حکومتی امداد نہ ملنے کی وجہ سے شدید مشکلات کا شکار. دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے 300 متاثرین میں امدادی سامان کی تقسیم. ٹھٹھا میں سیلاب کو گزرے 5 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، مگر سیلاب متاثرین ابھی تک شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کو کھانے پینے اور علاج معالجے کے لیے بہت ضرورت ہے. اس موقع پر حالجی کے نزدیکی گاؤں ارس میر بہر اور تھیم کے 300 متاثرین میں دعا فاؤنڈیشن کے سینئر نائب صدر ممتاز عالم نے سبیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسٹریلیا کے تعاون سے 300 متاثرین میں گرم کپڑے، جیکٹ اور دوسرا ضروری سامان تقسیم کیا. آگے بڑھیں گے. بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی تھانہ ایئرپورٹ کی حدود ڈھوک چودھریاں کار چوک گھریلو لڑائی جھگڑا 15 سالہ بچی گولیوں کا نشانہ بن گئی. زخمی 15 سالہ بچی پہلے سفاری اسپتال، وہاں سے ریفر ہو کر بے نظیر بھٹو اسپتال. شدید زخمی بچی کو وہاں سے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل راجہ بازار شفٹ کر دیا گیا، جہاں پر بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. معصوم بچی کو شدید زخمی حالت میں مختلف اسپتالوں میں گھمایا گیا، جس سے بچی کی حالت غیر ہو چکی ہے اور اس وقت ڈسٹرکٹ ہاسپٹل راجہ بازار ڈاکٹر کسی قسم کی توجہ نہیں دے رہے. لڑکی کے چاچو عرفان نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ معصوم بچی جو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے باپ کے پیچھے بھاگ گئی تھی، خود گولیوں کا نشانہ بن گئی اور اس وقت موت اور حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے. گولیاں مارنے والا درندہ کار کے ساتھ تصویر بنائے کھڑا ہے، جس نے معمولی گھریلو جھگڑے کو جان بوجھ کر آگ کی طرف دھکیل دیا اور ایک معصوم بچی کو جان بوجھ کر گولیوں کا نشانہ بنایا. اسپتال میں اس وقت لڑکی کا چاچو موجود ہے. بلیٹن میں آگے بڑھیں گے. آپ کو بتاتے چلے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق فیڈرل کیپٹل پولیس تھانہ کانا کے SHO عاصم غفار اور تفتیشی ASI عمران اغوا کاروں کے سہولت کار. اسلام آباد پولیس میں عاصم غفار نامی کرپٹ ترین SHO ASI عمران اغوا کاروں سے بھاری نذرانہ وصول کر کے ثنا قدوس کیس پر اثر انداز ہونے لگا. ثنا قدوس جو تھانہ کھنا کی حدود سے اغوا ہوئی تھی، اغوا کے 4 دنوں بعد تھانہ کھنا نے IG ڈاکٹر اکبر ناصر خان کے احکامات پر FIR نمبری 100/23 درج ہوئی. FIR درج کرنے کے بعد پولیس تھانہ کھنا لمبی تان کر سو گئی. ثنا قدوس کے لواحقین نے ایک نامزد ملزم کو اپنی مدداب کے تحت ٹریس کر کے حوالات پولیس کیا. FIR میں نامزد ملزم کی گرفتار ہوتے ہی تھانہ کھنا کے SHO عاصم غفار اور کیس کے تفتیشی نے مل کر اغوا کاروں سے بھاری رشوت وصول کر دی. نامزد گرفتار ملزم کی گرفتاری کے ساتھ ہی VVIP پروٹوکول دینا شروع ہو گیا.
SHO आसम गफ्फार और तफ्तीशी ने नामजद गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश और अगवा होने वाली हवा की बेटी की बाजियाबी की बजाय दिहाड़ी लगाना ज्यादा मुनासिब समझा। अगर एक थाने का SHO अगवा जैसे संगीन नौयत के मामले पर भी रिश्वत ले मुलजिमान को छोड़ देना लम्हा फिक्रिया है। PhD डिग्री होल्डर IGB रिश्वत खोर पुलिस एहलकारों को लगाम डालने में बिल्कुल नाकाम। बशीर अब्बासी है। आज 12 दिन से मेरी बहन सना कुदूस गैब है और खाना खाने वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मुजरिम आके उनसे मिल भी रहे हैं और 2 मुजरिमान बाहर हैं जिनकी मिली बगावत है, अरशद नाम है और सुमेरा, इनको उठाते नहीं हैं। मेरी बहन को बाजियाब किया जाए और जुल्म है ये। SHO की नाइली या मजलूम है, SHO नया लाए, SHO कुछ भी नहीं कर रहा है। कोई ईमानदार SHO ले आए। थाना खन्ना की हदूद से गई है, मेरी बहन अगवा हुई है। IG इस्लामाबाद फौरन नोटिस लें। मजलूम हैं, बहुत गरीब हैं। बंदे आपने बताए सुमेरा। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात N61 रावलपिंडी कैंट उज़्मा मुबारक एडवोकेट के कागजात भी जमा करवाए गए। रावलपिंडी से आपको बता रहे हैं, कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन N61 रावलपिंडी कैंट के लिए उज़्मा मुबारक एडवोकेट के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। उज़्मा मुबारक एडवोकेट ने हफ्ता को रिटर्निंग ऑफिसर जुल्करनैन हैदर रावलपिंडी कैंट N61 के पास कागजात नामजदगी जमा करवाए। इससे कबल कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में रावलपिंडी के 2 हलकों से 2 बहन भाइयों के वकला मैदान में उतरे थे। मिस ताहिरा बानो मुबारक एडवोकेट ने NA60 से और अजमत अली मुबारक एडवोकेट ने NA62 से कागजात नामजदगी जमा करवाए थे, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिया गया। और अब रावलपिंडी कैंट की एडवोकेट उज़्मा मुबारक का ताल्लुक मुबारक खानदान से है। मिस उज़्मा मुबारक रावलपिंडी के मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तीसरी उम्मीदवार हैं। इससे कबल इनके वालिद डॉक्टर मुबारक अली और भाई असगर अली मुबारक भी इन हलकों से 7 मरतबा कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा ले चुके हैं। मिस उज़्मा मुबारक एडवोकेट का इस मौका पर कहना था कि नौजवान पढ़ी लिखी क़यादत ही तमाम मसाइल का हल है। अवाम ने रवायती सियासतदानों को आजमाया और इलाका छोड़ने वालों का यौम एहतसाब करीब है। कौमी असम्बली अवामी मसाइल का फोरम है, लेकिन कौमी असम्बली में अवाम के मसाइल पर बात नहीं की जाती। इसलिए अब अवाम को ऐसे नुमाइंदे मुंतखब करना होंगे जो अवाम के हकीकी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात करें। आगे बढ़ेंगे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा अजफर की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में क्राइम मीटिंग में डिवीजनल SPs, SDPOs, SHO समेत दीगर अफसरान की शिरकत। SSP इन्वेस्टिगेशन जुनैरा अजफर ने फर्दन कारकर्दगी का जायजा लिया। FIR के इंदराज को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। गंदम की स्मगलिंग और पेट्रोल की जखीरा अंदोजी के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। मंशात फरोशों, पतंगबाजों और इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जाए। मेरिट पर तफ्तीश करते हुए ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के चालान बर वक्त मुरतब करके जमा करवाए जाए। SSP इन्वेस्टिगेशन के अफसरान को हिदायत। आगे बढ़ेंगे। चनियोट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट वतन अजीज़ की तमाम मजहबी और दीनी जमातें बाहमी इत्तेफाक को इत्तेहाद को फ़रोग देने और मजहबी मुनाफरत तासुब के खात्मे के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाना तमाम मसालिक की अव्वलीन तरजीह है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चनियोट में आल पार्टीज़ वहदत उम्मत प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम का खिताब। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड चनियोट में ऑल पार्टीज वहदत उम्मत प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहर सदर सुन्नी उलमा कौंसल पंजाब, मौलाना मलिक खलील अशरफी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, मौलाना मोहम्मद अशरफ ताहर समेत मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम ने खिताब करते हुए कहा कि कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली की जानिब से पेश करदा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सहाबा व अहले बैत बिल की मंजूरी पर तमाम अरकान असम्बली को खिराज तहसीन पेश करते हुए हैं और मुतालबा करते हैं कि इस बिल को सेनेट से पास करवा कर कानून की शक्ल दी जाए। तमाम उलमा इकराम पिशावर मस्जिद में होने वाली दहशत गर्दी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। दहशत गर्दी के ये वाक़यात प्यारे वतन पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ साजिश है। उलमा इकराम का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक को शहीद किए जाने की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मुल्जिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए स्वीडन हुकूमत से सख्त एहतजाज करे। इसके अलावा उलमा इकराम ने मुतफ़िका तौर पर तुर्की और शाम में आने वाले ज़ल्ज़ले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर शदीद गमो
गुस्से और अफसोस का इजहार किया। तुर्की और शाम की हुकूमतों और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त की कि दिल खोल कर तबाहशुदा इमलाक और अफराद की बहाली के लिए इमदाद करें। जरूरत क्यों पेश आई कि तरमीमी बिल लाया जाए? देखिए, ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा 295A है। अब उसकी तशरीहात को पढ़ें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा मुझे काफिर कह देता है, मुझे गाली दे देता है, चौधरी इस्लाम साहब को बुरा भला कह देता है, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब, मलक खलील साहब है, इन पे लान तान करता है, नौजुबिल्ला, इनका मजाक उड़ाए तो कानून हरकत में आता है। वो दफ़ा ताज़ीरात पाकिस्तान में 295A है जो नाकाबिल ज़मानत है और उसकी सज़ा 7 साल है। और खुदा न खास्ता उसके बरक्स वही जुमले जो हमको कहे, कोई आपको कहे, वही जुमले अव्वलुल मुस्लिमीन वहदत उम्मत के पहले जिनसे उम्मत शुरू हुई है जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वही खुदा न खास्ता को बंदा उनको वो जुमले कह दे तो पाकिस्तान का कानून हरकत में आता है। लेकिन ताज़ीरात पाकिस्तान में दफ़ा 298A है जो काबिल ज़मानत भी है और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कम से कम 3 माह सज़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सज़ा 3 साल है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस दफ़ा के तहत शायद ही कोई चुनिंदा लोग होंगे जिनको सज़ा हुई हो। ये तो तरमीमी बिल है, कानून पहले मौजूद है। ताज़ीरात पाकिस्तान में आप देखें, इससे कबल PTI की हुकूमत थी, उससे कबल किसकी थी, अब किसकी है? यानी कानून में सज़ा का तयन, यानी सज़ा बढ़ती भी रहती है, कम भी होती रहती है, ये हर हुकूमत करती है। ये तरमीमी बिल है, कानून पहले से मौजूद है। क्या ज़रूरत पड़ी कि मुक़द्दस शख्सियात, वो सहाबाए कराम हूँ, वो अहले बैत उज़ाम हूँ, वो अज़वाज मुतहरात हूँ रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, उनकी गुस्ताखी पर, उनकी तकफीर पर ये उम्र कैद की तरमीम हुई है सज़ा के अंदर। कानून पहले से मौजूद है। ये पहला कदम है। हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान के कानून में, और इंशाअल्लाह ये वक्त बहुत करीब आएगा, गुस्ताखाने अहले बैत, गुस्ताखाने अज़वाज मुतहरात, गुस्ताखाने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इनके लिए सज़ाए मौत का कानून होना चाहिए। और मैं यहाँ आपकी मौजूदगी में हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो अमीर हैं जमीयत उलमा इस्लाम के, हज़रत मौलाना सिराजुल हक साहब, इनको तो हमने खराज तहसीन पेश कर दिया, और फिर PTI के मेंबरान, वो आपकी अपनी सियासी वाबस्तगी हैं। मैं नून लीग के मेंबरान, MQM के मेंबरान और ANP के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट हैं, मैं आज दिल की गहराइयों से उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। हरीपुर से आपको बताते चले, नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक TIP कॉलोनी में आतिशज़दगी, रेस्क्यू 1112 की बरवक्त कार्रवाई बड़े नुकसान से बचा लिया। TIP कॉलोनी में स्टेट ऑफिस बाग के करीब क्वार्टर में आग भड़क उठी। इतला मौसूल होते ही रेस्क्यू 1112 हरीपुर की फायर फाइटर मौका पर पहुंच गई और आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने आग को एक कमरे तक महदूद करके घर को बड़े नुकसान से बचा लिया। ताहम एक कमरे का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। अहले मोहल्ला ने रेस्क्यू टीम की काविशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक कमरे में आग बच्चे की गफलत के बायस बिजली के हीटर से लगी। रात को सोने से पहले हीटर और गैस के वालों को लाजमी बंद कर दें। बिजली और गैस के हीटर के करीब छोटे बच्चों को बिल्कुल अकेले ना जाने दें। आपकी छोटी सी गलती किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 1112 पर कॉल करें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सीनियर नायब सदर मियां अफजाल हैदर ने कहा है कि शरीफ और जरदारी खानदान का माजी करप्शन केसेस से अबारत है। इनकी मफाद परस्ती और कौमी दौलत की लूट घसूट से पूरी कौम आगाह है। ये इक़्तिदार में रहकर कौमी दौलत पर हाथ साफ करते हैं और इक़्तिदार चले जाने के बाद इस दौलत को ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। इनका जमहूरियत से कोई लेना देना नहीं। इन मोरूसी सियासी जमातों ने जमहूरी कल्चर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने मनफी और ओछियत कंडों से बाशऊर अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। PDM में शामिल जमातों के मीडिया सेल दर हकीकत डिस इंफॉर्मेशन सेल बने हुए हैं। इमरान खान की किरदार कुशी इनका मामूल है। ये अवाम को अपने झूठे से गुमराह नहीं कर सकते। कौम इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद रखती है और आइंदा आम इंतखाबात में जीत PTI की होगी। उन्होंने कहा कि बाशऊर अवाम कप्तान के खिलाफ कोई मुतसाबाना फैसला कबूल नहीं करेगी। इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद मकबूल लीडर हैं। मसनद इक़्तिदार पर बिराजमान नैब जदगान अपने
मद्दे मुकाबल कप्तान को किसी सूरत दीवार से नहीं लगा सकते। कौमी चोरों के हाथों में क्लीन चिट थमाना, जबकि इमरान खान को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत नाअहल करने की मुसलसल जारी साजिशों में शामिल किरदार कौम के सामने हैं, जिनसे अवाम बखूबी आगाह हैं। शेखुपुरा से ही आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की साबिक ज़िले सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत PDM के लिए डरावना ख्वाब बन चुकी है, जिससे खाइफ इमरान खान से इंतकामी कार्रवाइयों पर हुक्मरान उतर आए हैं। इन सियासी बोनों को अवाम में जाने का खौफ रात को सोने नहीं देता। इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में कौम को डिलीवर किया और हर मामले में पूरा सच बताया, इसलिए वो अवाम का सामना करने के लिए हम वक्त तैयार और आम इंतखाबात के लिए फौरी इनेकाद का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौमी चोरों को एक्सपोज करने का क्रेडिट इमरान खान को जाता है, वो इनका एहतसाब जरूर करेंगे। मुत्तहिदा हुकूमत के हामी अपने मफादात के आइनादार आइन की तशरीहात से कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। नैब कवानीन में की गई मफादाती तरामीम PTI इक़्तिदार में आकर ख़त्म करेगी और आइन को असली हालत में बहाल करके करप्ट नासिर का कड़ा एहतसाब यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के टाइगर्स तख्ते इस्लामाबाद पर बराजमान नैबज़दगान को किसी मुहिम जोई की इजाज़त नहीं देंगे। अगर आम इंतखाबात के इनेकाद में मज़ीद ताख़ीर की गई, हम जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करेंगे और इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक समेत तमाम ऑप्शंस बरूए कार लाए जाएंगे। शेखुपुरा से आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नौ मंतखब सदर मारूफ कानूनदान उमर हयात भट्टी एडवोकेट ने कहा है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। नॉन स्टॉप महंगाई ने गरीब और मुतवसत तबका को जहनी मरीज बना दिया। रोज़मर्रा खाने पीने की अशिया समेत जान बचाने वाली अद्वियात के रेट आसमानों को छू रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। अवाम को रिलीफ की फ्राहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है, जिसमें हुकूमत की नाकामी के बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि सियासतदानों की एक दूसरे को नीचा दिखाने की रविश ने मुल्क कौम को मसाइल और मुश्किलात में जकड़ दिया और मईशत को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कौम जाए तो किधर जाए, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। आसमान को छूती महंगाई ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी हैं। कोई तबका हालात से खुश नहीं। उन्होंने कहा कि आटा के हसूल के लिए लंबी लंबी कतारों में लगी औरतें, बच्चे और बुजुर्ग हुक्मरानों को नजर नहीं आ रहे। आखिर कब तक इंसानियत की यूं तजलील होती रहेगी? हुक्मरानों को होश के नाखून लेना होंगे। उन्होंने कहा कि सियासतदान इक़्तिदार की रस्साकुशी की बजाय खुदारा अवाम के हाल पर रहम करे और इक़्तिदार की बजाय महंगाई कम करने के लिए मैदान में निकलें। शेखुपुरा से आपको बताते चले, नामवर शायर, ड्रामा निगार, अदीब अमजद इस्लाम अमजद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए PTI N के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा है कि अमजद इस्लाम अमजद की वफात से अदबी दुनिया में बड़ा खला पैदा हो गया है, जिसे पुर करना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि अदब शायरी से लगाव रखने वाले और नए सीखने वालों को तिश्नगी रहेगी। उनकी शायरी और ड्रामा निगारी सकाफत, माशरती तलखियों और इंसानी जिंदगी के हकीकी पहलुओं का अहाता करती थी। अदब शायरी से लगाव रखने वाले नौजवानों को चाहिए कि वो अमजद इस्लाम अमजद के नक्शे कदम पर चलकर अपना मकाम पैदा करें। शायरी से मुआशरे में बढ़ती हुई तलखी, बदतहजीबी और अदम बर्दाश्त को खत्म किया जा सकता है। अख्तर डार ने कहा कि अल्लाह ताला अमजद इस्लाम अमजद को अगली मंजिल उनकी आसान फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। सियासी मुआशी निज़ाम इमरान खान की पॉलिसियों से तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। ऐसे में कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान वो वाहिद कायद हैं जो हालात का इदराक रखते हुए अपना कौमी और बैनुल अक़वामी किरदार अदा कर रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई टिकट होल्डर मुत्तहिदा मजलिस अमल हाजी मलिक रशीद अहमद ऐवान ने उलमा इकराम और शहरी माहिदीन से जमीयत उलमा इस्लाम हारूनाबाद सेक्रेटरीट में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तमाम तर मसाइल का हल निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमली निफाज में है। खुदा की ज़मीन पर खुदा के निज़ाम को नाफज किए बगैर कामयाब नहीं हो सकते। जमीयत उलमा इस्लाम अपने कायद मौलाना फजल रहमान की क़यादत में इस आफाकी निज़ाम के निफाज के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हाजी मलिक रशीद अहमद ऐवान ने कहा कि उलमा इकराम और सज्जादा नशीनों के साथ साथ हर मुसलमान और शहरी पर फ़र्ज़ है कि वो अपना कौमी किरदार अदा करें और कुफर और दीन मुखालिफ कुव्वतों का रास्ता रोकें और वतन अजीज़ के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद करें। उन्होंने कहा कि वक्त पर होने वाले इंतखाबात में जमीयत उलमा इस्लाम भरपूर हिस्सा लेगी और मुखालिफिन के लिए मैदान खुला नहीं छोड़ा जाएगा। राबता अवाम मुहिम शुरू है और जमीयत का पैगाम घर घर पहुँचाने का काम शुरू है।
हासलपुर से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे याकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक किड हेवन स्कूल डिस्पोजल रोड हासलपुर के ज़ेरे एहतमाम वालदैन के लिए तरबीती वर्कशॉप आपका बच्चा मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत प्रिंसिपल अरसलान यूसुफ ने की। तरबीती वर्कशॉप से मोटिवेशनल स्पीकर इमरान सादक ने लेक्चर दिया, जबकि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज बहावलपुर प्रोफेसर तस्लीम आलम, मेंबर पंजाब बार कौंसिल हाजी मोहम्मद अफजल नईम यूशा ने खिताब करते हुए कहा कि आज का बच्चा एडवांस हो चुका है और वो तरक्की के रास्ते की तरफ गामजन होने का जहन रखता है। हमें अपने बच्चों की तालीम और तरबियत जदीद तकाज़ों के मुताबिक करनी होगी। बच्चों को उनकी मंशा के मुताबिक तालीम दिलाना होगी। बादशाह वालदैन और मेहमानों में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इसी हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे याकूब रजा की रिपोर्ट। सुभान ताला की हमद बयान ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं हम के लिए मदर या जो भी टीचर बच्चों से बहुत प्यार से बात करें, बड़े मोहब्बत से बात करें और आगे से बच्चे हमें रिस्पॉन्स ना दें तो हमें कैसा लगेगा, अच्छा या बुरा। रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल साहब का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने स्कूल की जो इंतज़ामिया है, प्रिंसिपल साहब हैं और जो टीचर्स हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। इमरान सादिक साहब ने अपने गोल्डन कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी है, मुश्किल माशरा है, ख़ास तौर पे हमारा जो पंजाब है, इस माशरे के अंदर हम बच्चों को मल्टी डायमेंशनल डायरेक्शंस दे रहे होते हैं। एट द सेम टाइम हम एक तरफ तो चाह रहे होते हैं, वी डिजायर अटमोस्ट टू टीच आवर किड्स। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले पेट्रोलिंग पुलिस भागोडेयाल ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी की सोशल मीडिया पर की गई कोशिश से गुमशुदा कपड़ों की गुठरी बरामद कर ली। शाहद मुनीर और हाफिज एजाज मुनीर ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। गुज़िश्ता कुछ दिन पहले तकरीबन 3,67,000 मालियत की कपड़ों से भरी गुठरी नारंग मोड़ से किला कालरवाला के दरमियान कहीं गिर गई। पेट्रोलिंग पुलिस भागोडेयाल ने यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी की मदद से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई और इसके साथ साथ इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस भागोडेयाल सब इंस्पेक्टर आशक अली ने अपनी टीम के हमरा सारे एरिया का तयन किया और इस इलाका में मौजूद लोगों से भी रब्ता किया। काफ़ी कोशिश के बाद शाहद मुनीर और हाफिज एजाज मुनीर सकना कोटली मियानी ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम करते हुए रब्ता किया और गुठरी के बारे में बताया। सारी तहकीकात के बाद गुठरी को मालिक सजावल रजा से रब्ता किया गया और इनको पेट्रोलिंग पुलिस भागोडेयाल बुलाकर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया की मौजूदगी में गुठरी इसके मालिक के हवाले की, जिस पर मालिक ने कहा कि आज के इस दौर में भी ऐसे ईमानदार लोग मौजूद हैं जिन्होंने गुठरी को खोला तक नहीं और इसी हालत में वापस लौटा दी। बाद में सब इंस्पेक्टर आशक अली ने तमाम मेहमानों की आमद और बिलखसूस यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे पहले भी हम मीडिया के तावन से एक गुमशुदा बच्ची और उसके वर्सा के हवाले कर चुके हैं।